So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video I am going to be discussing all the questions from cultural studies, a very important section of your syllabus. We are going to revise a single section through all the questions and the difficult kind of questions and the keywords that NTA NET is asking you. I will not only explain those questions to you, not only give you a very good revision just before your exam, but I will also give you some tips on how to solve difficult questions when you're sitting in your exam center. So this video is going to be very enjoyable, fruitful and very insightful for you. Let's start on that note. Before that, if you have not joined my Telegram channel, do go and join it, because uske andar you get all the free services, you get free test series, free polls and free discussions on any kind of problem that you are having. You get direct links and every notification within a single click. So do go and please join my Telegram channel. It is completely for free. The question number one that we are able to see over here is, what does the abbreviated term CCCS stand for in the context of cultural studies? In the context of cultural studies, whenever you are going to come across this triple C in S, you need to know that this is the Center for Contemporary Cultural Studies that was established in 1964 by three of the major writers, Richard Hogarth, Raymond Williams and Stuart Hall. ये जो तीन नाम I told you are the founding members of this particular center. This center, if I may tell you, is a kind of research center running under the University of Birmingham. So all the points that I am telling you are very important for you. I know you must all be prepared. So these notes or these small pointers are going to act very beneficial for you just before the exam. So you need to keep this in mind. This question has been repeated several times in your UGC NET exam, where they are asking the full form of triple CS, or they are asking what is the center, what is the date of the center, under which university you get this particular center. So you need to keep a very good track. You need to put it into your notes that Center for Contemporary Cultural Studies was established in 1964 by three of the main founding fathers under the Birmingham University. ठीक है. Next question that we see over here is question number 2. Name the author and the writer who is not associated with British cultural studies. I highly request you students, when you are sitting in your exam center and one by one you are questioning clicking the questions, just please do not be in a haste to find out the answers. Please do not miss out on these small keywords, which is not, which is never, which is false, which is not true. उसकी वजह से आपके पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है. एंड इफ यू मिस दैट एंड बाद में अगर आपको ध्यान आएगा, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अमंगस्ट ऑल दीज 4 राइटर्स, विच इज दैट राइटर हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज. आई ऑलरेडी गेव यू द नेम्स ऑफ ऑल द मेजर राइटर्स दैट यू कैन सी एज बीइंग द पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज, जिसमें से वी कैन क्लियरली सी दैट I.A. Richards is not that particular writer. And I guess I have discussed this particular question before with you, but I would like to again discuss this for all those students who are watching this video for the first time, that I.A. Richards आपके कल्चरल स्टडीज से नहीं बल्कि आपकी लिटरेरी थ्योरी के अंदर, न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के अंदर से बिलोंग करते हैं. ही इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड न्यू क्रिटिक, जिनका आपके कल्चरल स्टडीज से कोई भी लेना देना नहीं है. So the 3 names that you have to keep in mind in the context of cultural studies is Richard Hogarth, Raymond Williams and Stuart Hall. इन तीनों writers को ही अगर आपने अभी तक नहीं किया है, do not sleep on this particular 3 writers. Go right now and you have to find out matter for them. मेरे आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, मेरे फ्री वीडियोस हैं इन पर बने हुए. सो प्लीज़ आप इनको जाकर पढ़ाई करिए. ठीक है. Next question that we are able to see over here is an assertion and a reason question. Assertion हम लोग से बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि एग्जाम सेंटर में जब भी ये बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान. बट लेट मी टेल यू कि ये जो इतने बड़े शब्दों, इतने बड़े सेंटेंसेस में बस आपको मेन वैल्यू जो होती है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो मेन आइडिया आपको पकड़ना होता है, व्हेन यू गेट द मेन आइडिया यू विल ईजिली बी एबल टू गो एंड क्लिक द करेक्ट आंसर. लेट मी हेल्प यू ऑन दैट. Assertion आपसे कह रहा है कि स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज
maintain that culture in cultural studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but political. अब भाई यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये स्टेटमेंट इतना बेकार का लिखा हुआ है. आई सॉ वन ऑफ द रील्स वेयर एक बच्चे से पूछा गया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ही बी लाइक कि फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. सो बार बार किसी एक चीज को रिपीट करना, इधर उधर के शब्दों को यूज करके आपके एनटीए नेट की एक बहुत बड़ी चाल होती है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं. ध्यान से अगर आप इस चीज को देखो तो आपसे सिंपल सी चीज पूछी गई है कि कल्चरल स्टडीज के अंदर जो शब्द कल्चर आता है वो ना ही एस्थेटिक है, वो ना ही ह्यूमनिस्टिक है, वो पॉलिटिकल है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. If you have studied cultural studies, you know that cultural study deeply intersects with politics. Now, जब भी politics की बात होती है, जब भी कोई politic का नाम लेता है, I will like to explain this to you, तो आपको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट की बात की जा रही है, देन जनता की बात की जा रही है, बट पॉलिटिक्स का यहाँ पे मतलब होता है आपका पावर से. Your cultural studies is very very interested in seeing the power dynamics of the society. किसी भी सोसाइटी को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करता है आपका कल्चरल स्टडीज उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे. आप कौन सा सीरियल देखना पसंद करते हो, आप कौन सा फोन यूज करना पसंद करते हो, आप ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हो, या फिर आपको लगता है कि मंगल बाजार के भी कपड़े पहन लिए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. सो दीज चॉइसेस, द डेली लाइफस्टाइल दैट यू प्रेफर टू चूज फॉर योर सेल्फ becomes a part of the power dynamics. उससे आपकी सोच का पता लगता है. and this is what cultural studies is trying to find out through their studies, जिसको कहा जाता है कि वो ना ही ह्यूमनिस्टिक है, मतलब कि रैशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा तर्क पे नहीं चलता है, ना ही आपका ह्यूमनिस्टिक है, या फिर आपका एस्थेटिक भी नहीं है कि सिर्फ अपनी फॉर द ब्यूटी के लिए या फॉर द सेक ऑफ द लिटरेचर के लिए वो ये सारी चीज़ें करता है. आपका कल्चरल स्टडीज इज कम्प्लीटली पॉलिटिकल. दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन कल्चरल स्टडीज इज हाई आर्ट एंड द स्टडी ऑफ एग्जॉल्टेड लिटरेरी कैनन. अब जिस भी बच्चे को इन दो कीवर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता है उससे ये क्वेश्चन बनने ही नहीं वाला है, नो मैटर व्हाट आपने कितना भी रटा रटाया ज्ञान आपके पास हो, कितनी भी पीडीएफ आपने पढ़ रखी हो. हाई आर्ट आपका ऐसा आर्ट होता है विच इज नॉट प्रेफर्ड बाय द इलाइट पीपल. ध्यान से इस बात को समझना कि कल्चरल स्टडीज के अंदर आप पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर, यूथ कल्चर, सब कल्चर, बहुत सारे टाइप के कल्चर पढ़ते हो. कहीं से भी हाई कल्चर को या आपके मास कल्चर को, इन सारी चीज़ों को हाई आर्ट से कंफ्यूज मत करना. हाई आर्ट के अंदर आ जाएगा एवरीथिंग दैट इज प्रेफर्ड बाय द इलाइट. आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने सीरियल्स में देखा होगा कि जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो लोग बहुत महंगी महंगी एग्जीबिशंस होल्ड करते हैं एंड एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग आपको 2.5 लाख की बेचेंगे. किस नाम पे? कि ओ माई गॉड दिस इज हाई आर्ट, इट इज हैविंग अ वेरी डीप मीनिंग. तो ये जितना भी आपका जो आर्टिस्ट के अंदर आ जाता है, क्रिएटिविटी के अंदर आ जाता है, वो जिसका जो प्राइस होता है आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आता है, वो आपके हाई आर्ट के अंदर हो जाएगा. ओपेरा हाउसेस में जाना, गाने सुनना, जैज म्यूजिक सुनना, ये सब हाई आर्ट में आ जाएगा. एग्जॉल्टेड लिटरेरी कैनन के अंदर यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस इन माइंड कि शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं वो हाई आर्ट के अंदर आते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं इज मतलब वो एरे गेरे लोगों को नहीं समझ में आते हैं या उसको लोग पढ़ना पसंद नहीं करते. एग्जॉल्टेड लिटरेरी कैनन का मतलब है बेटा आपका वो लिटरेचर जो आपके लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखता है. आप चार्ल्स डिकेंस का अगर नाम मैं आपके सामने लेती हूँ तो आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि चार्ल्स डिकेंस तो कोई आलू चालू राइटर है. इफ आई से थॉमस हार्डी, इफ आई से टी.एस. इलियट, ये एग्जॉल्टेड लिटरेरी कैनन एंड ट्रेडिशन का पार्ट बन जाते हैं बिकॉज दीज राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अब जब आप ये समझ गए हो तो देखिए, the implication of the above is that the object of study in cultural studies is high art and the study of exalted literary canon. So कहीं पे भी आप लोग जब cultural studies पढ़ेंगे तो high art के बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे and exalted literary canon के बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, जिससे आपका पहला statement ठीक बैठ जाता है and आपका जो दूसरा statement है वो आपका गलत बैठ जाता है. ठीक है, A is correct and R is not correct becomes your answer. I hope आपको बहुत easily ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा and इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग कल्चरल स्टडीज को भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ऑन आवर स्क्रीन. पहले आपके सामने आंसर नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को स्टॉप करिए, स्ट्राइक योर आंसर्स एंड देन ओनली मूव टुवर्ड्स माय आंसर.
The subject matter of cultural studies is that it was emerged as a proto discipline in 1960s, was predominantly the exploration of dash. सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आपका कल्चरल स्टडीज एज अ जो फील्ड है वो एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था। तो आपकी जो डेट है जो आपको याद रखनी है इज 1964। नाउ इसमें और भी आगे जाके बहुत सारे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट्स होते हैं, लोग अपनी रिसर्चेस को लेकर आते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो इतनी सारी डेट्स को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Cultural studies was an interdisciplinary field. When I say interdisciplinary, तो आपकी कल्चरल स्टडीज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिले हुए हैं एंड इंटरकनेक्टेड है। आप साइंस पढ़ते हो तो आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ आर्ट्स पढ़ते हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हो। लेकिन कल्चरल स्टडीज एक ऐसी आपकी फील्ड है विच इज नोन एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, जिसके अंदर आप मार्क्सिज्म को भी देखोगे, आप न्यू हिस्टोरिसिज्म को भी देखोगे, आप रीडर रिस्पॉन्स को भी देखोगे, देन आप एंथ्रोपोलॉजी को भी देखोगे, आप सोशियोलॉजी को भी देखोगे। बहुत सारी फील्ड्स इस फील्ड के अंदर इंटरकनेक्टेड है। एंड क्योंकि आप एक इंसान के जीवन को सिर्फ एक ही पैरामीटर के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज जज करनी पड़ती है। उसकी सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजीज क्या है, वो कौन सा बिस्किट कंज्यूम कर रहा है, वो कौन सा सीरियल कंज्यूम कर रहा है, इन सभी चीज़ों को मिला के आप उसकी सोसाइटी और उसकी थिंकिंग के बारे में जान पाते हो। इसीलिए आपकी जो कल्चरल स्टडीज़ है is the exploration of your popular culture. Please understand, मैंने इस पे फुल वीडियो बना के रखा है कि मास कल्चर क्या है, पॉपुलर कल्चर क्या है, ज़रूर से जाके आप लोग मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं, बिकॉज पॉपुलर एंड मास कल्चर के ही बारे में आपका पूरा कल्चरल स्टडीज जो है वो डिपेंडेंट है। People or the scholars who are a part of the cultural studies are trying very hard to find out the cultural practices of the daily people, of the working class people, and उनके उस लाइफस्टाइल को जज करने की कोशिश करते हैं, उनके कल्चर में पावर डायनामिक्स को जज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ जजिंग व्हाट आर दे प्रेफरिंग फॉर देयर पॉपुलर कल्चर। एक अगर मैं पॉपुलर कल्चर की बात करूँ, एवरी दैट थिंग जो आपके सिटीजन्स इन अ लार्ज नंबर के द्वारा पसंद की जाती है, फॉलो की जाती है। कोई ट्रेंड आ गया, किसी हीरोइन ने कोई ड्रेस पहन ली तो फिर से वो ड्रेस पूरी दुनिया में सब लोग पहनने लगते हैं। किसी एक हीरोइन ने आपको कोई ब्लश का स्टाइल बता दिया तो वो ब्लश पूरी दुनिया में फेमस हो गया। देन आपका कोई हीरो है, उसने स्पेसिफिक हेयर कट करा लिया, सारे लड़के वो हेयर कट करा के घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में आ जाती हैं, जो पॉपुलर हो जाती हैं, एंड उसको कौन लोग हैं पसंद करने वाले, उन सभी चीज़ों की पढ़ाई पॉपुलर कल्चर में आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिल रही होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सामने कोई भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे वीडियोस के थ्रू एंड आप सोच रहे हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लीज़ अपने एग्जाम के एक हफ्ता पहले पैनिक मत हो जाना, क्वेश्चन के थ्रू ही समझना, उसको जाके सर्च मत करने लगना, बिकॉज राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू यू पीपल कि आप लोग जाएं उसके बारे में सर्च करें और अपने माइंड को कंफ्यूज करें। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट देम डाउन, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Which of these generally taken to be true of cultural studies? आपने अभी तक जितना भी कल्चरल स्टडीज के बारे में मेरे वीडियो के थ्रू समझा, आप लोग इस वीडियो को रोकिए, देन देखिए कि आपसे ये वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं। कल्चरल स्टडीज में क्या आपका कल्चरल स्टडीज पॉलिटिकली इंगेज्ड है? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि इट इज कंप्लीटली इंगेज्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद योर पॉलिटिक्स, दैट इज योर पावर डायनामिक्स। इट प्रिविलेजेस टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपका टर्म है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी पहले, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो टेक्स्ट को ज़्यादा प्रधानता देती है, या फिर कंसिडर्स द टेक्स्ट एज मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन द कॉन्टेक्स्ट और द रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट? आप सब लोग ने अगर मुझसे लिटरेरी थ्योरी को पढ़ रखा है, सो यू नो कि मैंने बताया है कि न्यू क्रिटिसिज्म एंड आपकी फॉर्मलिज्म, दो ऐसी थ्योरीज आती हैं जो आपके टेक्स्ट को एंड टेक्स्ट की ऑटोनॉमी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं rather than the context, rather than the reader, rather than your author and the biographical or historical details. तो आपके ये दोनों जो थ्योरीज है वो आपकी टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट को प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि वो कौन सी थ्योरीज हैं जो कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा मायने देती हैं, तो वो आपकी बन जाएगी मार्क्सिज्म, वो आपकी बन जाएगी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, वो आपकी बन जाएगी फेमिनिस्ट थ्योरी, वो आपकी बन जाएगी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, एंड लास्टली आपकी कल्चरल स्टडीज। आप इन सारी, एंड इसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म भी आएगा,
ठीक है, ये जितनी थ्योरीज मैंने यहाँ पे अभी पॉइंट आउट की हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आप अग्री कर रहे होगे, मुझे कमेंट भी करके बताना कि मैम यू आर राइट, कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में मार्क्सिस्ट बंदे भी बात करेंगे, आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी बात करेंगे, आपके फेमिनिस्ट भी कहती है कि भैया लिटरेचर को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट देखिए कि आपकी फेमिनिज्म के अंदर फेमिनिस्ट राइटर्स को पूरे लिटरेचर में क्या जगह मिली है पूरी हिस्ट्री के दौरान। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ही बार बार देखा जाता है आपका कॉन्टेक्स्ट रादर देन द टेक्स्ट, कल्चरल स्टडीज में तो देखा ही जाता है, एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म का तो बेसिस ही है आपके कॉन्टेक्स्ट या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना। तो यहाँ पे क्या आपका कल्चरल स्टडीज टेक्स्ट को ज्यादा मायने देता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर? नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा लिया है, चुटकियों में आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि कहीं से भी आपका कल्चरल स्टडीज फॉर्मलिज्म के साथ तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। पॉइंट नंबर डी, इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि ये लोग कॉन्टेक्स्ट देखने का काम करते हैं, हर चीज का रेफरेंस देखते हैं कि भाई ये टेक्स्ट कहाँ से आया। अगर हमारे समाज में एनिमल एंड आपकी कबीर सिंह जैसी मूवीज बहुत फेमस हो रही है, कौन है वो बंदा जो ऐसी मूवीज को प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसी मूवीज को दुनिया के सामने लेके आ रहा है, क्या उसका माइंडसेट है, एंड कैसे उसको पता है कि हमारी सोसाइटी में आजकल मार धाड़ एंड गोबर टाइप की मूवीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट मतलब आप एक टेक्स्ट के पीछे चले जाते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढ कर लेकर आते हो। सो ए एंड डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर्स। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट समझने के साथ ही साथ मजा आ रही होगी मेरे एग्जांपल्स के थ्रू। इफ दैट इज सो, डू कमेंट मी डाउन योर फीडबैक एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। Question number 6. Cultural studies is simply the study of culture as a discrete entity divorced from its social and political context. देखो यहाँ पे जो डाइवोर्स वर्ड है, सबको पता है कि भैया डाइवोर्स एक बहुत ही खतरनाक होता है, जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब हम लोग वहाँ पे डाइवोर्स वर्ड का यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि कल्चरल स्टडीज सिंपली एक ऐसी फील्ड है या फिर कल्चर की स्टडी है जो बिल्कुल अलग है आपके सोसाइटी से और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, तो आप खुद बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट आपका सही बैठेगा? क्योंकि हम लोग ने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से जाना कि कल्चरल स्टडीज इज completely involved and you're interconnected with society and politics। तो पहला स्टेटमेंट ही हम लोग को समझ में आ गया, ये गलत है, ये फॉल्स है। Cultural studies aim to understand culture in all its complex forms and to analyze social and political context within which it manifests itself। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। ऊपर इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है, नीचे इसी चीज को बोला है कि वो मैनिफेस्ट करता है कि वो सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। मजा आ रहा होगा तो मुझे जरूर एक बार कॉमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 7. Understanding the meaning of any cultural form would not simply located within a specific culture। Now let me tell you कि आपके cultural studies के अंदर बहुत सारे cultures आते हैं। You study your popular culture which is also known by the name of pop culture, you study your mass culture, you study youth culture, sub culture, consumer culture, बहुत सारे cultures हैं। मैंने अपने कोर्स में, मेरा फुल कोर्स है cultural studies का, उसमें पढ़ा के रखा है। If you are interested आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर कल्चर समझ में आ गया, that does not mean कि आप उसको बस उसी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, क्योंकि आपका कोई भी कल्चर मतलब एक स्पेसिफिक कल्चर नहीं है, इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द कल्चर्स। पॉइंट नंबर बी, cultural forms are best studied in terms of how these fit into the intersection between different cultural networks। आप किसी भी चीज के कल्चर को समझ सकते हो when you understand the intersection या फिर इंटरकनेक्टेड मीनिंग्स बिटवीन देम। सो बोथ ए एंड आर आपका करेक्ट हो जाता है एंड आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा एग्जाम में जब आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे। सो यू आर नो मोर गोइंग टू गेट एंशियस, क्योंकि मैंने आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है वेयर आई हैव नेवर सीन कि इतने बड़े क्वेश्चंस को इंटरनेट पे लाया भी जाता है। सो प्लीज इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करो, चाहे तो फिर से एग्जाम से पहले आप लोग स्पीड बढ़ाकर फिर से इनको रिवाइज करके चले जाना। ठीक है। Who among the following were revaluing the masses as sources and subjects of literature? अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी पूछी गई है कि बिल्कुल बच्चे के दिमाग के ऊपर से चली जाए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो कौन से राइटर्स हैं जो अपने लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन पीपल मतलब कि मासेस को बना रहे हैं। आप अगर लिटरेचर को उठा के देखेंगे
कुछ ऐसे सेट ऑफ राइटर्स हैं जो राजाओं की कहानी बताना प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो आपके नाइट्स एंड सोल्जर्स की कहानी बताना प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो नेचर के बारे में बात करेंगे, फूल पत्ती ग्रेशन ऑन वेस्ट विंड के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो रियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नेम दोज टू राइटर्स और पिक दोज टू राइटर्स जिन्होंने लिटरेचर जो बनाया है, लिटरेचर का सब्जेक्ट रखा है ऑर्डिनरी कॉमन पीपल मासेस को, हम सबको। तो ये दोनों जो आपके राइटर्स हैं ये है रिचर्ड होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स। आप जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ते हो तो इनके इन दो सेमाइनल वर्क्स को आपको छोड़ना नहीं है गलती से भी, और डेट भी आपको नहीं छोड़नी है क्योंकि इससे आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। रिचर्ड होगार्ट का वर्क है 1957 द यूजेस ऑफ लिटरेसी वेयर ही टॉक्स अबाउट द कॉमन वर्किंग कंडीशंस of the working class people, and Raymond Williams culture and society the long revolution। इनके तो कई सारे वर्क्स हैं, कीवर्ड्स भी इनका वर्क है और भी इनके कई सारे वर्क्स हैं जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट योर कल्चर बीइंग अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सिर्फ इलाइट कल्चर को बिलोंग करता है, एंड आपके ऑर्डिनरी मासेस के बारे में ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। सो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो फॉन्ट आपको यहाँ पर छोटा दिखेगा, आप लोग थोड़ा सा वीडियो रोक कर आराम से पढ़ लेना। According to Stuart Hall, a very important writer of cultural studies, which of these generally accepted to be true of cultural studies as it was practiced as University of Birmingham in the UK? आपको क्वेश्चन देखो बड़ा दिया है, बड़े क्वेश्चन को देख के मैं फिर से कह रही हूँ परेशान मत होना, आपको वहां से बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक करनी है। क्वेश्चन 4 लाइन का बना के दिया बट पूछा बस इतना है कि स्टुअर्ट हॉल जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं यूके की, कल्चरल स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, अपना आंसर स्ट्राइक करिए। योर आंसर ओवर हेयर इज इट कुड अकोमोडेट द स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। आपका कल्चरल स्टडीज importantly and most importantly बात करता है from the point of view of cultural studies, their culture, their lifestyle, their choices, what are the things that popular culture के अंदर आ रही है, कौन से सीरियल आपकी मम्मी देखती हैं, कौन सा न्यूज़ चैनल आपके पापा देखना पसंद करते हैं, कौन सा OTT प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, कौन सी वेब सीरीज आज की डेट में ट्रेंड पर चल रही हैं, इन सारी चीज़ को देखकर कि वर्किंग क्लास सोसाइटी को क्या पसंद आ रहा है एंड इनको कौन बनाकर इनको ही कंज्यूम करा के कौन अमीर बनता जा रहा है, एंड देन द एक्सप्लॉयटेशन एंड द पावर डायनामिक्स इन द सोसाइटी, इसकी स्टडी कर रहा है आपका कल्चरल स्टडीज। इट वॉज एसेंशियली ए पॉलिटिकल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो कल्चरल स्टडीज है वो पॉलिटिकल था या ए पॉलिटिकल था, तो ए पॉलिटिकल आपका नहीं था, इट वॉज पॉलिटिकल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल द कंसेप्ट ऑफ डैश प्लेड अ सेमाइनल रोल इन कल्चरल स्टडीज। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टुअर्ट हॉल के अकॉर्डिंग उस किस चीज़ ने कल्चरल स्टडीज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपका आंसर है यहाँ पर हेजेमनी। हेजेमनी में आपको बता दूं कि एंटोनियो ग्राम्स्की जो आपके मार्क्सिस्ट राइटर है, हेजेमनी उनका टर्म है वेयर ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द सबाल्टर्न पीपल, जिनको आपके पॉलिटिक्स में, जिनको आपकी सोसाइटी की हायरार्की में कुछ से नहीं मिला होता है एंड उनकी बहुत बुरी हालत है आपकी सोसाइटी में। सो हेजेमनी इज रूल बाय कंसेंट। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अपना ही प्रोडक्ट बेचकर आपके ऊपर रूल करने लगते हैं, आपको अपनी ही जो प्रोडक्ट्स है वो ठीक नहीं लगती एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेना चाहिए, मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा वो ठीक रहेगा। सो हेजेमनी इज रूल बाय कंसेंट। इस चीज़ को, इस मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को कल्चरल स्टडीज़ के अंदर स्टुअर्ट हॉल ने समझाया है थ्रू द यूज ऑफ हिज मीडिया स्टडीज। आपको पता होना चाहिए कि स्टुअर्ट हॉल रिसेप्शन थ्योरी, इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल एंड आपकी मीडिया स्टडीज को बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं एंड मीडिया को पढ़ने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये हेजेमनी आपके दिमाग में घुसाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेमंड विलियम्स व्यूज ऑन कल्चर। इसमें से कौन सा रेमंड विलियम्स के हिसाब से सही नहीं बैठता है। प्लीज़ एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। अगर आपने रेमंड विलियम्स को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए।
द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही हम लोग ने देखा कि वो कौन से दो राइटर्स हैं who specifically talk about from the point of view of your working class people or the masses, तो वो है रिचर्ड होगार्ड एंड रेमंड विलियम्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके रेमंड विलियम्स कहेंगे कि नहीं भाई कल्चरल वैल्यूज को बनाने में, बिल्ड करने में हमारे मासेस का, हमारी वर्किंग क्लास पीपल का कोई भी से नहीं है। ये पॉइंट गलत होगा। कल्चर इज ऑर्डिनरी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रेमंड विलियम्स ने बोला है। कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपके कल्चरल स्टडीज के अंदर ये बोलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 लेयर्स ऑफ योर कल्चर विच इज योर डोमिनेंट, रेसिडुअल एंड इमर्जेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मैंने समझा के रखा है। यूट्यूब पर भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। देन बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट में भी मैंने बहुत ही डिटेल में अपने कोर्स में समझाया है। यू कैन गो एंड चेक आउट वट एवर यू फील लाइक। Question number 12 है who among the following Richard Hogarth and Stuart Hall were some of the founding fathers of the school of thought now known as British Cultural Studies। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है कि रिचर्ड होगार्थ एंड स्टुअर्ट हॉल के साथ वो कौन सा तीसरा बंदा है जो फाउंडिंग मेंबर बनता है आपका, वो है रेमंड विलियम्स। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी आप लोग से पूछे गए हैं। आई एम नॉट विलिंग कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही करें, जो आते हैं वो मैं आपके सामने ले आती हूँ। Question number 13, who among the following coined the dictum the medium is the message। मीडिया स्टडीज के सरताज बोला जाता है इनको, मार्शल मैकलुहान को, जिन्होंने मीडियम को या फिर मीडिया को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है। एंड ट्रस्ट मी, इनकी जो मीडिया को लेके थ्योरीज है, आई एम डीपली मूव्ड बाय हिज थ्योरीज। मैंने अपने पूरे लेक्चर के दौरान बताया है कि हाउ आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ मार्शल मैकलुहान वेयर ही हैज सेड द मीडियम इज द मैसेज। कि आप और आज के समाज में हम लोग सोशल मीडिया पे जो भी कोई भी पोस्ट हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, जैसे आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे भड़काऊ वीडियो देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको परेशान किया जाता है कि अरे अब तो तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारा तो रिजल्ट हो जाएगा कैंसिल, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस डिक्टम से आपके मार्शल मैकलुहान कहते हैं कि आप लोग सिर्फ मैसेज जो मिल रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हो, किस मीडियम से मिल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो रहा है, अगर आपके साथ कोई स्कैम किया जा रहा है, तो ये जो बातें हैं वो आपको खुद ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पता लगनी चाहिए या फिर किसी यूट्यूबर के थ्रू। आज की डेट में मैं भी आकर कोई भी ऐसा वीडियो बना सकती हूँ जिससे मेरे व्यूज तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट एम आई बीइंग करेक्ट ऑन माई पार्ट एज अ टीचर कि मैं बच्चों को भड़का रही हूँ, मैं बच्चों को परेशान कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एन ऑफिशियल पर्सन टू बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच एन ऑफिशियल वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे अगर बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल, तो मान लेना कैंसिल, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक मीडियम है। प्लीज इस पर्टिकुलर मैसेज से मेरे इस बात को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, Question number 14 we have, which of the following assertions are not true in the context of culture industry? Max Horkheimer, Theodore Adorno, very important Marxist writer जो cultural studies के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। Culture industries are all those institutions, all those media, magazine, newspaper, clothing trend, makeup and everything जो आपके trending में है, जो आपके कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू आपको पढ़ाया गया है या बताया गया है। मेरा बहुत मज़ेदार वीडियो है इस कल्चर इंडस्ट्री के टॉपिक के ऊपर, नहीं देखा है अभी तक तो उसको सर्च मार के देखना, मज़ा ना आए तो बताना आप लोग, वो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे कल्चर इंडस्ट्री का जो इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जो नॉट ट्रू बैठता है आपके कल्चर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, द ऑथेंटिक कल्चर अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। आपका जो कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू ये बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे अमीर लोगों का जो कल्चर है वो दुनिया किस तरीके से फॉलो करती है। द मास कल्चर दस प्रोड्यूस्ड इंड्यूसेस एक्टिविज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द यूथ। आपका कल्चर इंडस्ट्री आपके माइंड को इंटॉक्सिकेट कर देता है। आपके 10,000 के अच्छे भले चलते हुए फ़ोन को कहेगा कि नहीं यार ये फ़ोन तो बिल्कुल नहीं ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट नहीं हो अंटिल यू डू नॉट बाय अ 2 लाख का फ़ोन, यू डू नॉट बाय अ 60 लाख की फरारी एंड यू डू नॉट बाय सर्टन ब्रांड्स के क्लोथ्स। तो आपकी जो मास कल्चर की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ख़त्म कर देता है आपका कल्चर इंडस्ट्री। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 एंड probably the last question. Which cultural analyst has combined the study of different dimensions of youth culture with with commentary on developments in cultural theory and politics? वो कौन सी राइटर है इसमें से
जो आपकी बात करती हैं यूथ कल्चर के बारे में। द नेम ऑफ दैट राइटर इज एंजेला मैक्रॉबी। मेरा इस पर फुल वीडियो बन रखा है। आपको कल्चरल स्टडीज लगता है कि 7-8 राइटर पढ़ लिए तो मेरा कल्चरल स्टडीज हो गया, पर आपके कल्चरल स्टडीज के अंदर बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए। पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्स को एक बार चेकआउट करना। यहाँ पे एंजेला मैक्रॉबी टॉक्स अबाउट यूथ कल्चर, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीनेज गर्ल्स, कि किस तरीके से feminism has been constructed in the minds of the teenage girls through the use of media, popular culture and the magazines, जो आपकी टीनेज गर्ल्स के अंदर एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है या फिर उनके माइंड को करप्ट करने की कोशिश करता है। मेरा फुल वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ये थे मेरे कुछ 15 क्वेश्चंस, बट आपको पता होगा कि कल्चरल स्टडीज़ के अंदर सिर्फ इतने क्वेश्चंस नहीं हैं। आप अभी भी अगर सेग्रीगेटेड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, जो मैंने हर सेक्शन के लिए बना के रखे हैं, बहुत ही मेहनत से ये बने हैं, तो आप हमारी PYQ टेस्ट सीरीज़ को जाके अवेल करें। आपके पूरे सिलेबस को सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है एंड उसके अंदर भी आपको कुछ एनालिटिक्स प्रोवाइड की गई है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन नहीं, जिसको टॉपिक वाइज आप क्लिक करके अपने क्वेश्चंस लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दिस इज एन इंडिपेंडेंस दैट वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स, ताकि उनको किसी के भी सामने मतलब डिपेंड ना होना पड़े कि मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म के क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन क्वेश्चंस, अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी। मेरा कोर्स चेकआउट ज़रूर से करना, जिसमें आपको कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ने के बाद कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू लाइक यू कैन गो एंड चेक आउट माई अदर कोर्सेज एज वेल। मेरे यूट्यूब से ज़रूर से जुड़े रहना, वेयर यू आर गेटिंग ऑल द फ्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, माई फ्री कॉन्टेंट ओवर हेयर, जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए या आपकी ओवरऑल लिटरेचर की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे अपना कमेंट भेजना मत भूलना, अपना फीडबैक ज़रूर से देना। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड लेट देम नो अबाउट दिस चैनल विच इज़ अ ग्रोइंग चैनल। आपके ही सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। डू लाइक एंड कॉमेंट ऑलवेज एज यू पीपल डू। सेंड मी योर लव एज ऑलवेज। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।